بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنگ ضاب 750 عیسوی مطابق 25 جنوری کی صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد جنگ ضاب اس وقت کے خلافت امیہ کے خلیفہ مروان ثانی اور تحریک عباسیہ کے سپہ سالار ابو مسلم اور عبداللہ بن علی عباس کے افواج کے درمیان دریائے ضاب کے کنارے لڑی جانے والی ایک اسلامی جنگ تھی۔ اسلامی تاریخ میں خلافت امیہ خلافت راشدین کے بعد قائم ہونے والی دوسری بڑی سلطنت تھی۔ خلافت انبیاء کا قیام خلافت راشدہ کے آخری خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد عمل میں آیا، جب حضرت امیر معاویہ نے اپنی وفات سے قبل اپنے بیٹے یزید کو شورا سے مشاورت کیے بغیر ہی اپنا جانشین مقرر کر دیا، اور یوں خلافت تقوی، پرہیزگاری اور علم اور سیاسی دانشمندی کی خصوصیات کے حامل لوگوں کے بجائے نسل در نسل منتقل ہونے لگی۔ بنو امیہ کے خلفاء نے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے ایشیا، یورپ، افریقہ غرض کے ہر محاذ پر جنگ لڑی، یہاں تک کہ بنو امیہ کا پرچم مغرب میں اسپین سے لے کر مشرق میں سندھ تک بلند ہو گیا۔ لیکن ان تمام فتوحات کے باوجود بنو امیہ کی عوام اپنے حکمرانوں سے ناخوش تھی، اور یہی خلافت امیہ کے زوال کا سبب بنا۔ خلافت امیہ اسلامی خلافت کے بجائے شخصی اور موروثی خلافت بنی، جبکہ مسلمان خلفائے راشدین کے طرز عمل کو اپنانا چاہتے تھے، اس لیے اس طرز خلافت کے لیے مسلمان روز اول سے ہی اس کے مخالف تھے۔ خلافت کی نوعیت میں اس تبدیلی کو نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی محسوس کیا اور یزید کی بحث سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں سان کربلا کے المناک واقعہ پیش آیا۔ امیر خاندان کے اس ظالم اور صفاق چہرے نے مسلم امہ کے دلوں میں عملی خاندان کے لیے نفرت کے شدید جذبات پیدا کر دیے، جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ زور پکڑتے گئے۔ یزید کی خلافت کے دور سے ہی شراب نوشی اور دوسری اخلاقی بیماریاں بنو امیہ کے خلفاء کی زندگی کا لازمی جز بن گئی تھیں۔ بنو امیہ کے حکمران اپنی عیش و عشرت کی وجہ سے عوام میں مقبولیت کھوتے گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ وہ واحد عملی خلیفہ تھے جن کی خلافت کا دور خلفائے راشدین کی خلافت کے عکاسی کرتا تھا، اس لیے انہیں عمر ثانی کا لقب دیا گیا تھا۔ لیکن افسوس کہ ان کی حکومت صرف 3 سال ہی رہی۔ زیادہ تر حکومتی عہدوں پر فائز افسران نااہل اور ظالم تھے۔ بنو امیہ کے حکمران عدل و انصاف سے بے نیاز اور ظلم و جبر میں مشہور ہو چکے تھے۔ بنو امیہ ایک ایسی عرب سلطنت تھی جو کہ صرف عرب قوم کو ہی برتر سمجھتی تھی، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں واضح فرما دیا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری نہیں، برتری صرف تقوی پر ہے۔ لیکن بنو امیہ نے تقوی کے بجائے عربی ہونے کو برتر سمجھا، اور اسی نظریے کے پیش نظر خلافت امیہ نے کچھ ایسے اقدامات کیے جو اس وقت کے غیر عربی مسلمانوں کے لیے دل آزاری کا باعث بنے۔ جزیہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو اسلامی حکومت میں صرف غیر مسلموں کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ بنو امیہ نے یہ ٹیکس غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ عربیوں کے علاوہ دوسرے تمام مسلمانوں پر بھی مسلط کر دیا تھا، اور حکومتی عہدوں کے دروازے تمام غیر عرب مسلمانوں پر بند کر دیے تھے۔ عرب قبائل میں زمانہ قدیم سے ہی دشمنیاں چلتی آ رہی تھیں۔ خلافت راشدین کے دور میں یہ قبائلی تعصبات دبے رہے، لیکن عملی دور خلافت کے دوران یہ تعصبات پھر سے سر اٹھانے لگے، یہاں تک کہ بنو امیہ کے آخری دور میں اس قبائلی چپکلش نے عرب قبائل کے درمیان خانہ جنگی کی صورتحال اختیار کر لی تھی۔ یوں عرب اتحاد کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا، اور اسی کا فائدہ باغی جماعتوں نے بخوبی اٹھایا۔ اس کے علاوہ امی خاندان میں خلافت کے حصول کے لیے اندرونی دھڑے بندیاں بھی شروع ہو گئی تھیں، جس نے امی خاندان کے اتحاد کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ خلفائے امیہ نے اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر اپنے ہی سپہ سالاروں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ محمد بن قاسم فاتح سندھ کا قتل ان دشمنیوں کی واضح مثال ہے۔ ان اقدامات نے سپہ سالاروں کی وفاداری کو بے حد نقصان پہنچایا، جو بعد میں بنو امیہ کے زوال کا سبب بنا۔ چنانچہ ان حالات اور ناانصافیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنو امیہ کی عوام اپنے حکمرانوں سے بیزار ہو گئی اور عوام میں بغاوت سر اٹھانے لگی، جبکہ اس کے ساتھ ہی جنگی محاذ پر بھی بنو امیہ کا زوال 717 عیسوی سے شروع ہو گیا تھا، جب شامی فوج کو بازنطینی فوج کے ہاتھوں زبردست شکست اٹھانی پڑی۔ جبکہ اس شکست کے بعد خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے ایسے اقدامات کیے جن پر سلطنت عارضی طور پر مضبوط ضرور ہوئی، لیکن ان کے اقدامات بھی دیر پا ثابت نہ ہو سکے، اور 743 عیسوی میں ان کی وفات کے ساتھ ہی سلطنت میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ خلیفہ ہشام کی وفات کے بعد ولید ثانی خلیفہ کے منصب پر فائز ہوا۔ ولید ثانی خلیفہ کے منصب کے لیے انتہائی ناموزم شخص تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ولید ثانی نہ صرف عیاش فطرت رکھنے والا انسان تھا، بلکہ دین اسلام کی توہین بھی کرتا تھا۔ اپریل 700
744 ईस्वी में यजीद सालिस ने वलीद सानी के खिलाफ खुली बगावत कर दी और दमिश्क का मुहासरा करके आखिरकार वलीद सानी को कत्ल कर दिया गया और वो खुद खलीफा बन गया। बहरहाल यजीद सालिस खिलाफत संभालने के सिर्फ 6 माह बाद ही इंतकाल कर गया और इसने नसीहत में अपने भाई इब्राहिम को अपना जानशीन नामजद कर दिया था, लेकिन मरवान सानी ने इब्राहिम को खलीफा मानने से इनकार किया और ताकत के जोर पर खलीफा होने का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से बनु उमैया में इंतशार मजीद बढ़ता गया। मिस्र, शाम, ईरान, इराक और खुरासान के इलाकों में बनी उमैया के खिलाफ बागी जमातें हरकत में आ गईं। इस दौर को इस्लामी तारीख में तीसरा फितना भी कहा जाता है। जब मरवान सानी शाम और मिस्र में ताकत का बेदरग इस्तेमाल करते हुए बगावत को कुचल कर अपनी खिलाफत कायम रखने की कोशिशों में मसरूफ था, तो खुरासान में एक नई और सबसे ताकतवर बागी जमात तहरीक अब्बासिया ने सर उठा लिया, जो बनु उमैया के 90 साल इक़्तिदार की खात्मे का बाइस बनी। 719 ईस्वी में शुरू होने वाली तहरीक अब्बासिया दूसरी बागी जमातों के बरअक्स 3 दहाइयों पर मुश्तमिल एक सोची समझी सियासी हिकमत अमली के तहत वजूद में आने वाली जमात थी। तहरीक अब्बासिया खिलाफत अंबिया को हटाने और खिलाफत अंबिया को कायम करने की एक खुफिया मुहिम थी। तहरीक अब्बासिया का नाम हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पर रखा गया था। उनसे खानदानी तुर्बत इस तहरीक का बुनियादी नजरिया था और इसी नजरिए के तहत तहरीक अब्बासिया के रहनुमाओं का ये मानना था कि चूँकि वो खानदान रिसालत से हैं, तो इसलिए बनु उमैया के मुकाबले में वो खिलाफत के ज्यादा हकदार हैं। अब्बासी खानदान ने यकीन दिलाया कि वो अहले बैत का बदला अंबी खानदान से लेकर रहेंगे और यूं अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले अरबी और गैर अरबी मुसलमान जोक दर जोक तहरीक अब्बासिया में शामिल होते गए। दावत बनु अब्बास का बाकायदा अमली अब्बास इमाम अबू इब्राहिम मोहम्मद अब्बास ने किया और हालात के पेश नजर खुली बगावत के बजाय उन्होंने खुफिया तौर पर अपने लोगों को मुख्तलिफ इलाकों में रवाना किया और हिदायत की कि या मेरी या मेरे अहले बैत की तरफ लोगों को तरगीब दो और जो तुम्हारी दावत कबूल कर लें उनसे दस्तखत भी ले लेना। खुरासान के रिहायशी जोक दर जोक खुफिया तौर पर इस दावत को कबूल करते गए और दस्तखत भी करते गए, यहाँ तक कि इमाम इब्राहिम की मकबूलियत खुरासान में इस हद तक बढ़ गई कि भेजे गए नकीब कम पड़ने लगे और मजीद 12 नकीबों को खुरासान रवाना कर दिया गया। हाकिम खुरासान असद को जब इस बगावत का इल्म हुआ तो उसने आले अब्बास की तहरीक के बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया, जबकि बहुत से लोग इसकी कैद में चले गए। कुछ की नाक काटी गई, लेकिन ये तहरीक बजाय कमजोर होने के दिन ब दिन जोर पकड़ती गई। 744 ईस्वी में जब इमाम इब्राहिम ने अबू मुस्लिम को, जो खुद भी खुरासानी थे, अपने अहले बैत करार देकर खुरासान भेजा, तो खुरासान में उस वक्त यमनी और मिस्री अरब कबाइल एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे। अबू मुस्लिम खुरासानी ने इस खाना जंगी का बाखूबी फायदा उठाया और अपनी दानिश्वरी और अपनी बेहतरीन हिकमत अमली को गुरुए कार लाते हुए तहरीक अब्बासिया को खुरासान ने उरूज पर पहुंचा दिया। बिला आखिर 25 रमजानुल मुबारक 747 ईस्वी में आले अब्बास की तरफ से ऐलान हुआ कि अब तहरीक अब्बासिया का इजहार खुफिया नहीं बल्कि ऐलानिया तौर पर किया जाएगा। अगर बनु उमैया ने ताकत का इस्तेमाल किया तो ताकत का जवाब भरपूर ताकत से दिया जाएगा। खुरासान के गवर्नर नसर बिन सय्यार ने अपने आजाद करदा गुलाम यजीद के हमराई में बेहतरीन रिसाला अबू मुस्लिम को खत्म करने के लिए रवाना किया, लेकिन नसर बिन सय्यार के रिसाले को अबू मुस्लिम के भेजे गए लश्कर के हाथों जबरदस्त शिकस्त उठानी पड़ी, जिसके नतीजे में यजीद को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद अज़ां आजाद कर दिया गया कि चाहो तो तहरीक अब्बासिया में शामिल हो जाओ और चाहो तो वापस अपने हाकिम नसर बिन सय्यार के पास जा सकते हो। यजीद तहरीक अब्बासिया से बेहद मरहूब हुआ, लेकिन अपने हाकिम की मोहब्बत में वापस चला गया और नसर से बयान किया कि तहरीक अब्बासिया के अराकीन हक पर हैं। मुझे यकीन है कि उनकी तहरीक कामयाब होकर रहेगी। अब अबू मुस्लिम ने 10,000 सिपाहियों की हमराही में खुद उस वक्त के खुरासान के गवर्नर नसर बिन सय्यार की फौज से मुकाबला किया और फतह हासिल की। शिकस्त के नतीजे में नसर फरार हो गया। इसी असना में मुस्लिम ने अबू हाजिम बिन खुजैमा को मरो फतह करने भेजा। हाजिम ने मरो के हाकिम पर हमला किया, जिसके नतीजे में हाकिम मरो की फौज भाग गई और हाकिम को कत्ल कर दिया गया। मरो का मैदान हाथ से जाने के बाद नसर को अबू मुस्लिम के खुरासान पर बढ़ते हुए इक़्तिदार का शिद्दत से एहसास हुआ और मौका पाते ही खुरासान से फरार होकर पहले तूर पहुंचा और उसके बाद जरजान चला गया और हमदान की तरफ सफर के दौरान बीमार होकर वफात पा गया। और यूं मैदान खाली देखते ही अबू मुस्लिम ने मुकम्मल खुरासान पर कब्जा जमा लिया। अबू मुस्लिम ने इमाम इब्राहिम के मुकर्रर करदा सिपा सलार कातबा बिन शबीब अलताई को जलजान, तूस, इराक व अज़म की फतह के लिए
लिए रवाना कर दिया। उन्होंने जरजान के करीब एक मुकाम पर हमला किया और हाकिम बनाना के 10,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल फौज को शिकस्त देकर बनाना को कत्ल कर दिया। इस फतह के बाद कातबा बाकायदा जरजान पर हमलावर हुआ और जरजान भी तहरीक अब्बासिया के लिए फतह कर लिया गया। जब इराक के अमीर यजीद बिन उमरो को जरजान फतह होने की खबर पहुंची तो उसने आमिर बिन यस्सार और अपने बेटे दाऊद की सरबराही में 50,000 सिपाहियों की फौज कातबा से मुकाबले के लिए रवाना की। मुकाबला अस्फहान के करीब जन्नी के मकाम पर हुआ। जंग से पहले कातबा ने यजीद बिन अमर की फौज को किताबुल्लाह की दावत दी, लेकिन उन्होंने बदले में गालियां दी और यूं कातबा ने अपनी फौज को हमला करने का हुक्म दे दिया। मामूली झड़प के बाद ही यजीद की फौज का सिपाहसालार अमर मारा गया और यजीद का बेटा दाऊद फरार हो गया। सिपाहसालार की वफात और दाऊद के भाग जाने से यजीद की फौज के हौसले पस्त हो गए। चुनाचे उन्होंने कातबा की फौज के सामने हथियार डाल दिए। यूं 749 ईस्वी में अस्फहान भी बनु उमैया के हाथ से निकल गया। अस्फहान फतह करने के बाद कातबा ने अपने बेटों के साथ निहावत पर हमला किया और वहां भी फातेह करार पाया। निहावत फतह करने के बाद कातबा ने इराक की तरफ पेशकदमी की और कूफा से 23 मील दूर दरिया फुरात के मगरिबी साहिल पर यजीद बिन अमर की फौज से मुकाबला किया। ये जंग कई रोज जारी रही। इस दौरान कातबा ने वफात पाई और उसका बेटा हुसैन अमीरुल जैश मुकर्रर हुआ। बहरहाल मुतअद्दिद लड़ाइयों के बाद यजीद बिन अमर को बिलाखिर शिकस्त हुई और वो वास की तरफ रवाना हुआ। यूं मुहर्रम 750 ईस्वी में हसन कूफा फतह करके पूरे जाओ जलाल के साथ कूफा में दाखिल हुआ। यहाँ खुरासान और इराक में तहरीक अब्बासिया फतह पर फतह हासिल करके इलाके अपने कब्जे में कर रहे थे और वहाँ मरवान सानी शाम में मौजूद खाना जंगी से निपटने की कोशिशों में मसरूफ था और साथ ही दावत अब्बासिया से भी बेखबर था। खलीफा मरवान सानी को तौसीए दावत अब्बासिया के बारे में एक खत से मालूम हुआ जो इमाम इब्राहिम ने अबू मुस्लिम के खत के जवाब में भेजा था। खत में तहरीर था कि तुम नसर से जल्द अज जल्द फारिग हो जाओ और अगर मौका हाथ आए तो खुरासान में एक भी अरबी जिंदा न बचने पाए। ये खत पढ़ते ही मरवान सानी के होश उड़ गए और उसने दमिश्क के गवर्नर को पैगाम भेजा कि इमाम इब्राहिम को होशियारी और खामोशी से गिरफ्तार करके मेरे पास भेजो। हुक्म की फौरन तामील हुई और इमाम इब्राहिम को फजर की नमाज के फौरन बाद मस्जिद से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इमाम इब्राहिम ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान वहाँ मौजूद नमाजियों से खिताब करते हुए अपने भाई अबू अल अब्बास बिन अब्दुल्ला को अपना जानशीन मुकर्रर किया और कहा कि मेरी ये तुम लोगों से आखिरी मुलाकात है और कूफा जाने का हुक्म दिया। इमाम इब्राहिम को कैद करके हुरान के कैद खाने भिजवाया गया और वहाँ उनको जहरीला दूध पिलाकर कत्ल कर दिया गया, जबकि कुछ रिवायात में आता है कि उनकी वफात कैद में सरतान से हुई। बहरहाल अबू अल अब्बास अल सफ़ा कूफा की जानिब रवाना हुआ और 749 ईस्वी में कूफा में बाकायदा अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया और इस तरह खिलाफत अब्बासिया का पहला खलीफा बना। कूफा और खुरासान में अपनी खिलाफत कायम करने के बाद अबू अल अब्बास ने अपनी फौज को अब्दुल्ला बिन अली अब्बास की सरबराही में खिलाफत बनु उमैया के आखिरी खलीफा मरवान सानी से मुकाबले के लिए रवाना किया। अगरचे सिपाहसालार अब्दुल्ला बिन अली अब्बास को मुकर्रर किया गया था, लेकिन दर हकीकत जंग का सारा इंतजाम अबू मुस्लिम के ही हाथ में था। अमवी और अब्बासी खानदान के दरमियान इक्तदार की ये फैसला कुन जंग दरियाए ज़ाब के किनारे पर लड़ी गई, इसलिए इसे जंगे ज़ाब कहा जाता है। ये इंकलाब अब्बासिया की वो आखिरी जंग थी जिसने अमवी खानदान को खिलाफत से बेदखल कर दिया था। दरियाए ज़ाब के मगरबी किनारे पर खलीफा मरवान ने अपनी फौज के साथ पड़ाव डाला, जबकि मशरकी किनारे पर अब्बासी सिपाहसालार अबू मुस्लिम और अब्दुल्ला बिन अबी अब्बास ने अपनी फौजों के साथ कयाम किया था। बनु उमैया का सारा शाही खानदान बमा 1.5 लाख सिपाहियों के उस वक्त मरवान सानी के साथ खिलाफत अब्बासिया के 35,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल फौज से मुकाबले के लिए रवाना हुआ और वो दरियाए ज़ाब के मकाम पर मौजूद था। मरवान सानी को अपने तजुर्बे पर बड़ा फख्र था। उसका ख्याल था कि वो माजी में बाज़ंतीनी अफवाज को शिकस्त देता आया था और उसकी फौज तजर्बाकार अमवी सिपाहियों पर मुश्तमिल है, इसलिए वो अब्बासी बगावत को जंग के जरिए कुचल सकता है। लेकिन दर हकीकत ये मुख्स उसकी खाम ख्याली ही साबित हुई। अगरचे अमवी अफवाज को तादाद और तजुर्बे की बुनियाद पर अब्बासी फौज से बरतरी हासिल थी, लेकिन अब्बासी फौज से मुसलसल शिकस्त ने अमवी सिपाहियों के हौसले पस्त कर दिए थे। दूसरी तरफ बेशक अब्बासी फौज तादाद में अमवी फौज के मुकाबले में बहुत कम थी, लेकिन मुसलसल फतूहात, मजबूत अज़ाएं और इंतकाम के जज्बे ने उनके हौसले बहुत बुलंद कर दिए थे। चुनाचे 24 जनवरी 750 ईस्वी को अब्बासी फौज के सिपाहसालार अब्दुल्ला बिन अली ने ऐना बिन मूसा को 5,000 सिपाहियों के साथ दरियाए ज़ाब उबूर करके मरवान सानी के पड़ाव पर हमला करने का हुक्म दिया। दोनों फरीकैन के दरमियान शाम तक जंग जारी रही, लेकिन जब अंधेरा
पहलने लगा तो दोनों तरफ से जंग रोक दी गई और अब्बासी कमांडर अपने सिपाहियों के साथ दोबारा दरिया उबूर करके अब्दुल्ला बिन अली के पड़ाव में वापस चला गया। अगली सुबह मरवान सानी ने अपने बेटे अब्दुल्ला को दरिया उबूर करके अब्बासी सिपा सलार अब्दुल्ला बिन अली की तरफ हमले के लिए उन्हें रवाना किया। अब्दुल्ला बिन मरवान अब्दुल्ला बिन अबी अब्बास के पड़ाव से 5 मील के फासले पर खंदक खोदकर मोर्चा जन हुए। अब्दुल्ला बिन अली अब्बास ने मुखारिब बिन गफ्फार की सरबराही में लश्कर तश्कील लेकर अब्दुल्ला बिन मरवान से मुकाबले के लिए रवाना किए। इस झड़प में अब्बासी फौज को शिकस्त हुई, बेशुमार अब्बासी सिपाही मारे गए और जबकि बहुत से गिरफ्तार हुए। अब्बासी सिपा सलार ये अच्छी तरह से जानते थे कि खुद से 2 गुना फौज से लड़ने के लिए उन्हें अपनी फौज के बुलंद हौसले और जोश की उन्हें बहुत जरूरत है। चुनाचे जब अब्बासी सिपा सलार अब्दुल्ला बिन अली अब्बास को इस शिकस्त की बावत मालूम हुई तो उसके साथियों ने उसे मशवरा दिया कि सिपाहियों का हौसला बुलंद रखने के लिए जरूरी है कि शिकस्त करदा फौज के वापस आने से पहले ही आप मरवान सानी पर हमला कर दें। अब अब्दुल्ला बिन अबी अब्बास अपनी फौज के साथ मरवान सानी के साथ मुकाबले के लिए निकल पड़ा। मुकाबला शुरू हुआ और जब यहाँ भी अब्दुल्ला बिन अब्बास को पसपाई दिखने लगी तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सब घोड़े से उतरकर पैदल हो जाएं और नेज़े तान लें। चुनाचे तमाम अब्बासी सिपाही घोड़े से उतर गए और घुटनों के बल खड़े होकर नेज़ों की दीवार बना ली। तीर बरसाए गए और बहुत से अम्वी सिपाही मारे गए। तीर बरसाए गए और कुछ ही देर में जंग का पांसा यूं पलटा कि अम्वी फौज के पांव उखड़ गए और अम्वी फौज पीछे हटने लगी। दूसरी तरफ अब्बासी लश्कर ललकारने लग गया कि इब्राहिम का बदला लो। अब्बासी फौज में या मोहम्मद या मंसूर के नारे लगने लगे और देखते ही देखते खून रेज जंग छिड़ गई। सूरत हाल की संगीनी देखते हुए मरवान सानी ने बनी कसाक को पैदल होने का कहा। बनी कसा ने पैदल होने से इनकार कर दिया और कहा कि बनी सलीम को हुक्म दो। अब मरवान ने सिकासक को हमले का हुक्म दिया तो सिकासक ने इनकार करते हुए कहा कि बनी आमिर को हमले का हुक्म दो। जब इसने उन्हें हमले का कहा तो उन्होंने बनु उतफान को हमले का कहा। मायूस होकर मरवान ने अपने खास मुहाफिज दस्ते के सरदार को पैदल होने का हुक्म दिया, लेकिन उसने भी ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं अब्बासी फौज के नेज़ों का निशाना नहीं बनना चाहता और यूं बनु उमैया की फौज बजाय मुकाबला करने के खौफ और दहशत के आलम में मैदान छोड़कर फरार होने लगी। चुनाचे मरवान सानी ने जब देखा कि उसके सिपाही बजाय मुकाबला करने के मैदान छोड़कर भाग रहे हैं तो वो खुद भी भाग निकला और जाते जाते उसने अब्बासी फौज की पेशकदमी को रोकने के लिए दरिया का पुल तोड़ डाला, जिसके नतीजे में जितने अम्वी सिपाही जंग में मारे गए उससे कई ज्यादा डूबकर मर गए। यूं जंगे ज़ाब में दर्दनाक शिकस्त उठाने के बाद बनु उमैया के 90 साला इक्तदार का अब्बासी खानदान के हाथों खात्मा हो गया। अब्बासी खुलफा ने भी ताकत का पुरजोर इस्तेमाल किया और अम्वी खानदान का कत्ले आम शुरू कर दिया। जिसने अबू अल अब्बास की खिलाफत पर बैत कर ली उसे अमान दी गई और जिन्होंने बगावत की उनका कत्ले आम किया गया और जो फरार हुए उनका ताक़ुब किया गया। वो लोग जब तक के न पकड़े गए और जो कत्ल से बच गए उन्हें कैद कर लिया गया। इस दौरान मरवान सानी का ताक़ुब और तलाश भी जारी रही। मरवान फरार होकर पहले दमिश्क फिर फलस्तीन और आखिर में मिस्र जा पहुंचा, जहां 6 अगस्त 750 ईस्वी में अब्बासी सिपाहियों के हाथों वो कत्ल हो गया और यूं खिलाफत खानदान मरवान से मुंतकिल होकर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में आ गई और खिलाफत अब्बासिया इस्लामी दुनिया की वाहिद सल्तनत तस्लीम कर ली गई। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।